Okay, so in the last class we studied about cross product. I'll just give you a quick recap on that. Vector product, or cross product. Okay, so so let's say you have two vectors A and B. Let's say this is vector A and this is vector B. Okay, this is vector B. इस तरह से मान लो. And to have a clear visualization of this concept, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको एक प्लेन पे रखता हूँ. देखो, like this is a plane. ठीक है, एक मिनट. Let me draw the plane first, and then it would be easier for you to understand this. Okay, so let's say that this is some plane. Okay, like this. Now there are two vectors, और ये दोनों vectors इसी plane पे. In fact, if you have any two vectors, when you join the tails of those two vectors, both the vectors should lie on the same plane, right? Now, let's say this is one vector A. This is vector A, and this is vector B. Now, ये क्या है? This is the plane. Okay, this right here is the plane, and I'm going to define a unit vector which is perpendicular to the plane. देखो, this is perpendicular to the plane. N cap. N cap is unit vector perpendicular to the plane. All right, and let's say the angle between them is theta. Angle between the two vectors is theta. All right. Now, when I say A cross B, ध्यान से देखना क्या चीज, A cross B. तो A cross B vector, A cross B is a vector A cross B. A cross B जब मैं बोलता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? It is going to be AB sin theta, and उसका जो डायरेक्शन रहेगा it would be along n cap. ठीक है, it would be along n cap, and it is given by what? Right hand thumb rule. Right hand thumb rule से when you चारों फिंगर्स को A के along रखो राइट हैंड के, और B के तरफ कर्ल करो. यू आर कर्लिंग योर फिंगर्स लाइक दिस. समझ रहे हो? यू कर्लिंग योर फिंगर्स लाइक दिस. सो द वेक्टर्स, या जो थंब रहेगा तुम्हारा, वो थंब किधर पॉइंट करेगा? देखो ऐसे. दिस वुड बी द थंब, and this right here is what? A cross B. A vector cross B vector. And can you see that A cross B का direction n cap के along है? And the other observation here is that A cross B would be perpendicular to both A and B. देख सकते हैं? It is perpendicular to both A and B. I hope you understood this one. तो इधर से ये इसका डायरेक्शन के बारे में हमने बात कर लिया, एंड ये A क्रॉस B वेक्टर हो गया. ठीक है, तो आई विल राइट दैट पॉइंट कि A क्रॉस B will be perpendicular to A vector and also perpendicular to
बी वेक्टर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ऐसे रहेगा, है कि नहीं? नाउ एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बिकॉज बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन रहेगा, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ दैट, लेट्स से दिस इज, ये अपना ए वेक्टर था, this is our A vector, same situation, okay? This is our B vector, and if I try to find B cross A, ये एंगल तो थीटा ही है, सेम थीटा ही है। अगर मैं B क्रॉस ए ट्राई करता हूं तो B पे थंब रख के मुझे A के तरफ कर्ल करना पड़ेगा ना, ऐसे। तब मेरा थंब किधर रहेगा? राइट हैंड का थंब किस तरफ पॉइंट करेगा? इट वुड बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, देख सकते हैं, इट वुड बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। Okay, so this is going to be what? B cross A. Now you can clearly see that n cap का डायरेक्शन क्या था? n cap का डायरेक्शन क्या था? ऊपर की तरफ था, है ना, like this. n cap का डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ था, तो ये B क्रॉस A इज ऑपोजिट टू n cap, समझ गए? तो यहां से मैं एक चीज बोल सकता कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शंस, बट यस A क्रॉस B एंड बी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एंड बी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम है। और कितना रहेगा? इट इज गोइंग टू बी ए बी साइन थीटा। ओके, डायरेक्शन उल्टा रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन, एक मिनट, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए will be opposite to each other. Okay, so I hope you have understood this simple sa concept. Now, okay, some of the properties of vector product. ये तो हमने देख लिया कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, और a क्रॉस b एंड b क्रॉस a का साइन क्या रहेगा? सेम। नेक्स्ट वी कैन से दैट अगर ऐसा सिचुएशन है कि a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b प्लस a बोला, सॉरी b प्लस c बोला, तो इसका वैल्यू होगा a क्रॉस b plus A cross C. You have to maintain the order, ठीक है? Order has to be maintained, वो मैं लिख देता हूं, order has to be maintained, मतलब A आगे रहेगा हमेशा। ओके, इन दिस केस। ओके, नाउ नेक्स्ट अपने देख सकते हैं कि अगर लेट्स लुक एट द डिफरेंट एंगल्स, एंगल्स का वजह से, एंगल के चेंज की वजह से क्या क्या हो सकता है। सो इफ आई टॉक अबाउट पैरेलल वेक्टर्स मतलब थीटा क्या हो गया? जीरो। तो देखो थीटा जीरो तो साइन थीटा क्या हो गया? जीरो हो गया। तो दैट इंप्लाइज ए क्रॉस बी क्या हो गया? ए क्रॉस बी वुड बी इक्वल टू जीरो, जीरो वेक्टर हो जाएगा। अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स है तो
एंटी पैरेलल वेक्टर्स है तो थीटा क्या हो गया 180. दैट इंप्लाइज ए क्रॉस बी क्या हो गया अगेन जीरो. साइन 180 इज ऑल्सो जीरो. तो ये दोनों केस में क्या होगा जीरो. बेस्ट एग्जाम्पल इज लाइक आई सेड व्हेन द फोर्स इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू आर वेक्टर द बॉडी वोंट रोटेट, है ना. वही लॉजिक यूज कर लो. ओके. द अदर थिंग इज परपेंडिकुलर वेक्टर्स. परपेंडिकुलर वेक्टर्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स में थीटा क्या रहेगा 90. तो इसमें ए क्रॉस बी कितना होगा देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90. साइन 90 इज 1 तो ए बी एन कैप हो जाएगा. ये क्या है दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड. देख सकते हो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड. ओके इट इज द केस ऑफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड. नाउ तो ये हमने तीनों केसेस देख लिए. ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है एंड यू कैन क्लियरली सी दैट हियर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता है. ठीक है. तो आई विल राइट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A cross B cannot be नेगेटिव. लेकिन A क्रॉस B का वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब डायरेक्शन उल्टा है. ठीक है. तो इधर ये भी लिख देता हूं नेगेटिव साइन will only imply negative direction. Okay, this is very important. Now I'll give you a mathematical reason for that. एक चीज समझने का कोशिश करो. थीटा का वैल्यू मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 180 होता है. यू नो दैट राइट. थीटा का रेंज क्या होता है 0 to 180. मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना होता है इट इज 180. अब 0 to 180 मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट्स हुए. सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा. बट इफ यू रिमेंबर डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे ए बी कॉस थीटा आया था और कॉस थीटा में कॉस कंपोनेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है. इसलिए वो ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा. ओके. तो ये कुछ ये बेसिक सा एक चीज हो गया. नाउ इसके बेसिस पे अपने और आगे क्या क्या बोल सकते हैं देखो. इसके बेसिस पे आई कैन से दैट कि विथ इटसेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे ए क्रॉस ए करेंगे तो क्या होगा बताओ. ए क्रॉस ए इज पैरेलल टू इटसेल्फ ना. मतलब ए इंटू ऐसा लिखना पड़ेगा ए इंटू ए इंटू साइन 0 एन कैप. मतलब ये क्या हो गया जीरो हो गया. देखो पैरेलल वेक्टर्स है. अरे ए खुद के साथ तो पैरेलल ही रहेगा ना. तो ए क्रॉस ए क्या होगा जीरो होगा. ऑलराइट. यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात करें तो अगर मान लो ए कैप करके एक वेक्टर है. ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर. एक सेकेंड. ए कैप एंड बी कैप आर व्हाट यूनिट वेक्टर्स. तो ए कैप एंड बी कैप यूनिट वेक्टर्स है. मतलब ए कैप क्रॉस बी कैप क्या रहेगा 1 साइन थीटा एन कैप. मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा साइन थीटा एन कैप हो जाएगा. ओके. साइन थीटा एन कैप. नाउ अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज मेरे को बताने का है. वो ये है कि अपना जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है. इट इज लाइक दिस. ये एक्स एक्सिस दिस इज दी वाई एक्सिस
and this is the z axis, ये x axis, y axis and z axis. एंड इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स है वो किधर कौन से इसके अलोंग का यूनिट वेक्टर देखो क्या है, इसके अलोंग का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप. इसके अलोंग का यूनिट वेक्टर जे कैप एंड इसके अलोंग का यूनिट वेक्टर ये क्या रहेगा, के कैप, है कि नहीं. तो अब इधर से देखो, सबसे पहला चीज जो लिख सकते हो वो ये है कि आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप एंड ऑल दीज वैल्यूज वुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, उसका 0 रहेगा. ठीक है, खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट अबाउट आई क्रॉस जे. अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूं तो ध्यान से देखो, आई कैप क्रॉस जे कैप करता हूं तो आई क्रॉस जे, आई का मैग्नीट्यूड कितना है 1, जे का मैग्नीट्यूड कितना है 1. तो 1 इंटू साइन 90, देखो इसे 1 इंटू साइन 90 इंटू, अब इसका राइट हैंड थंब रूल लगाओ. देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो यू कैन सी दैट थंब इज पॉइंटिंग लाइक दिस. ये फिंगर्स हुआ, ये थंब देखो पॉइंटिंग टुवर्ड्स के कैप. व्हाट कैन यू से, you can say that direction is going to be k cap. तो ये देखो ये पूरा वैल्यू तो क्या हो गया 1. इसका मतलब देखो क्या आया, i क्रॉस j is going to be equal to k. तो that also implies कि j क्रॉस i क्या रहेगा, खाली डायरेक्शन पलट दो, डायरेक्शन पलट देना मतलब माइनस k कैप हो गया. तो सिमिलरली इफ यू यूज दैट लॉजिक, j क्रॉस k क्या होगा, j क्रॉस k is going to be i cap, implies k क्रॉस j क्या होगा, माइनस आई कैप. ठीक है, एंड k क्रॉस i क्या रहेगा, k क्रॉस i is going to be j cap, implies i क्रॉस k क्या रहेगा, माइनस j कैप. ओके, सो इसको देखो कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा जाता है कि कैसे इसको याद किया जाए. तो ये इसको इधर लिख दो, ये याद रखने का तरीका आई कैप जे कैप के कैप ऐसा लिख दो. एंड आई क्रॉस जे विल गिव यू के, ऐसे याद रख लो. आई क्रॉस जे क्या देगा, के. जे क्रॉस के विल गिव यू आई एंड के क्रॉस आई विल गिव यू जे. ठीक है, ये पॉजिटिव साइकिल हुआ. एंड अगर उल्टा गए मतलब क्या, आई क्रॉस के किया तो नेगेटिव, के क्रॉस आई गया तो के क्रॉस जे गया तो माइनस आई कैप एंड जे क्रॉस आई गया तो माइनस के कैप आएगा. बोलो क्लियर. तो इससे तुमको ये वैल्यूज क्लियरली याद रहेगा. ठीक है, तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि एग्जांपल देता हूं, आई विल गिव यू वन एग्जांपल. एग्जांपल, अगर a वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 3 j कैप, तो a क्रॉस b क्या रहेगा, देखो a क्रॉस b वुड बी, देखो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू इनके, इसका क्या रहेगा, देखो i क्रॉस j क्या रहेगा, i क्रॉस j. 2 इंटू 3 कितना हुआ 6 एंड i क्रॉस j कितना है k, इधर से भी याद रख सकते, i क्रॉस j क्या है k. तो 6k कैप वुड बी द आंसर. ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. ओके, सो let's say you have two vectors a which is ax I cap plus ay j cap plus az k cap.
and the other vector b is bx I cap plus by j cap plus bz k cap. Now if I ask you to find a cross b, तब क्या होगा देखो, a cross b. Let's do this in the simple manner. ठीक है, तो सबसे पहले इन सबको एक एक करके, थोड़ा लंबा मेथड है, आई वांट यू टू गेट द फील ऑफ दिस, उसके बाद मैं उसका ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है, उसका सिंपल सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, बट आई वांट यू टू सी हाउ इट्स व्हाट्स हैपनिंग हियर. ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ए एक्स आई कैप को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखो, ये देखो 3 वेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 वेक्टर्स. तो लेट्स से दिस फर्स्ट पार्ट इज ax I cap cross bx I cap plus ax I cap cross by j cap plus ax I cap cross bz k cap. ओके, ये हो गया ax को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया. अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, ay को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ay को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा, ay j कैप क्रॉस bx I कैप, सॉरी प्लस ay j कैप क्रॉस by j कैप प्लस ay j कैप क्रॉस bz k कैप. फिर थर्ड टर्म देख रहे हैं, 9 टर्म्स आएंगे, है ना. az का देखते हैं, तो az k कैप क्रॉस bx I कैप प्लस az k कैप क्रॉस by j कैप प्लस az k कैप क्रॉस bz k कैप. ओके, तो अब देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म देखो, इसमें से कौन से कैंसिल हो जाएंगे. देखो आई क्रॉस आई वाले टर्म्स कैंसिल हो गए, ये गया पूरा. जे क्रॉस जे वाला कैंसिल हो गया, के क्रॉस के वाला कैंसिल हो गया. देख सकते हैं ना, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के वाले कैंसिल हो गए. ठीक है, नाउ ये जो टर्म है, देखो यहाँ पे फर्स्ट इन दिस टर्म व्हाट कैन यू से, इधर क्या आएगा देखो, हियर आई क्रॉस जे क्या है, के होगा. इधर आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे होगा. चलो उसको लिख ही देता हूं मैं प्रॉपरली. तो इन दोनों का प्रोडक्ट में क्या रहेगा, ax b ax सॉरी ax by आई क्रॉस जे क्या है, k प्लस ax bz आई क्रॉस k क्या है, माइनस जे है, तो माइनस ax bz j हो गया. समझ गया ना, माइनस, क्योंकि k आई क्रॉस के इज माइनस जे. ओके, उसके बाद प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई देखो माइनस के होगा, तो माइनस ए वाई बी एक्स के क्या. ठीक है, प्लस इधर क्या आएगा देखो, ए वाई बी जेड और जे क्रॉस के इज आई, तो ए वाई बी जेड आई कैप. उसके बाद यहां पे देखो प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई देखो जे, के क्रॉस आई इज जे, तो ए जेड बी एक्स जे. ओके, प्लस ये में देखो, इसमें देखो के क्रॉस जे इज माइनस आई, सो यूल गेट माइनस ए जेड बी वाई
आई, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे देखो दो दो टर्म्स आई के, यहाँ पे भी दो टर्म्स आई के, यहाँ पे भी दो टर्म्स है जे के, और यहाँ पे दो टर्म्स है के। तो इसको साथ में लिख देता हूँ। तो देखो मुझे क्या मिला, ए क्रॉस बी का वैल्यू implies, देखो I'll write it like this, implies A cross B is equal to आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है, देखो आई कैप का कोएफिशिएंट इट इज ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट देखो क्या रहेगा, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, प्लस के कैप का कोएफिशिएंट देखो क्या आएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप. So that is your cross product formula. This is the formula for cross product. Okay, so this is the formula for cross product. Now I hope you have understood this part. Now इसमें एक बहुत चीज clearly देखना, you can see that I cap के coefficient में x components नहीं है, देख सकते हो, ax भी नहीं है, bx भी नहीं है. j cap के coefficient में y के components नहीं है, k cap के coefficient में z के components नहीं, ठीक है. तो I hope you understood this one. I'm not saying कि तुमको ये पूरा चीज याद रखना है. I just showed you कि ऐसे solve कर सकते हैं. We have एक सिंपल से लॉजिक से हमने इसको पूरा को डिराइव किया, ठीक है. ओके, तो मैं दिमाग में कैसे सॉल्व करता हूँ इस चीज को. इफ आई वांट आई कैप ना, आई कैप को यहीं से हटा के देखो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई लिख देता हूँ. देखो यहां से ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई क्रॉस में हो गया. उसके बाद जे कैप के लिए उल्टा जाऊंगा, यहां से चालू करूंगा, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, देखो ये आ गया. और के कैप के लिए मैं ये देखो ए एक्स अगेन फ्रॉम लेफ्ट हैंड कॉर्नर से ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, तो इससे हो जाएगा, एक लाइन में सॉल्व हो जाता है, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. नाउ बेस्ड ऑन दैट लॉजिक मैं सिंपली इसको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में करके बताता हूँ. ये एक टॉपिक है मैथ्स का, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, वो सिर्फ जेई वाले पढ़ेंगे आगे 12th स्टैंडर्ड में. अभी बस ये सिर्फ एक मैट्रिसेस कैसे लिखते हो बता रहा हूँ, मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट मेथड बताता हूँ. डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट मेथड क्या है, ध्यान से देखो. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए क्रॉस बी जब लिखोगे, ए क्रॉस बी लिखोगे तो एक ऐसा एक 3x3 मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, एक 3x3 अरेंजमेंट बनाओ. इधर सबसे ऊपर वाले रो में लिखो आई जे के लिख दो. उसके बाद अगर तुमसे ए क्रॉस बी बोला तो ए के कोएफिशिएंट्स पहले लिखो, मतलब ये हो गया ए एक्स, स्मॉल यूज किया था मैंने, तो ए एक्स ए वाई ए जेड. उसके बाद लास्टली बी का बी एक्स बी वाई बी जेड. ओके, नाउ अब देखो आई कैप का कोएफिशिएंट लिखेंगे तो ध्यान से देखना. आई कैप का पहला, हमेशा जब इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, तो पहला पॉजिटिव देन नेगेटिव फिर पॉजिटिव. अगर ये 4/4 होता तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा करके करते हैं. तो यहाँ पे तो सिर्फ तीन ही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है. तो ऐसे चालू करते हैं. तो आई कैप का कोएफिशिएंट के लिए ध्यान से देखना इस चीज को. आई कैप के कोएफिशिएंट के लिए भूल जाओ कि ये और ये है करके, इसके अलावा देखो क्या है, चार है, ये चार. तो इन चारों में ऐसा क्रॉस मारो, ऐसा एंड ऐसा, तो ये कितना होगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई. ओके, ना पहला वाला प्लस लिखने के बाद यू नीड टू राइट नेगेटिव, माइनस जे हमेशा नेगेटिव में लिखना, नेगेटिव
देन यूज द सेम लॉजिक। तो इस सेम लॉजिक को यूज करता हूं, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस। तो अभी इस सेम लॉजिक को यूज करता हूं। तो जब जे का कोएफिशिएंट निकालना है तो ये और ये गया। अब देखो बचा कौन, ये चार बचे। तो इन चारों में देखो ऐसे ही जाना, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। क्या आया, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ओके, उसके बाद फिर से प्लस आ जाएगा, प्लस के ऑल्टरनेट करते जाना, आई फिर जे फिर के। ओके, नाउ अभी इसको नेक्स्ट इसके लिए भी कैसे लिखता हूं देखो। तो के का कोएफिशिएंट चाहिए तो के का रो और कॉलम उड़ा दो। तो बचा कौन, ये चार बचे। तो इन चारों में देखो ऐसे ही, दिस माइनस दिस। तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब एक चीज नोटिस करोगे, यहां पे मैंने नेगेटिव लिया और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया था, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो अंदर ब्रैकेट के अंदर इधर ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड है, यहाँ पे उसका उल्टा है, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। तो ये नेगेटिव बाहर निकालोगे तो यूल गेट द सेम थिंग। ओके, so that is the determinant method. Okay, I hope you understood the determinant method. All right, now the applications of cross product. तो एप्लीकेशंस में सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो कह सकता हूं, फाइंडिंग एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। फाइंडिंग एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, जस्ट होल्ड अ मिनट प्लीज। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम निकालने के लिए यू शुड नो दैट ये पैरेललोग्राम कैसा रहता है। दिस इज व्हाट अ पैरेललोग्राम looks like. ये दो parallel lines and these are the other two parallel lines, है ना। So this is what a parallelogram is. Okay, now let's say कि ये जो पैरेललोग्राम है इसका ये साइड है A and this side is B and the angle between these two are theta. Okay, now पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, how do you calculate that? You drop a perpendicular from this end, ये इसका हाइट हो जाता है, ये इसका हाइट हो जाता है, राइट, ये h। तो पैरेललोग्राम का एरिया इज इक्वल टू b इंटू एच होता है, याद है यही चीज होता है। किस लॉजिक से मैंने ये कहा b इंटू एच, क्योंकि आई कैन ब्रेक इट इनटू टू ट्राइंगल्स और वो दो ट्राइंगल्स का सम टू, एक ट्राइंगल क्या क्या होगा, हाफ इंटू बी इंटू एच, एंड दूसरे ट्राइंगल का भी हाफ इंटू बी इंटू एच, ऐड करूंगा तो b इंटू एच हो गया। नाउ फ्रॉम दिस ट्राइंगल कैन यू सी दैट दिस, फ्रॉम दिस ट्राइंगल यू कैन से दैट h का वैल्यू क्या है, इट इज a sin theta. You can see from this particular triangle that h is equal to a sin theta. तो h is equal to a sin theta, उसको सब्सटीट्यूट करो तो एरिया क्या हो गया, एरिया इज इक्वल टू b इंटू a इंटू साइन थीटा, या फिर ए बी साइन थीटा लिख दो। सो एरिया इज सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b कर सकता हूं। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालो, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड या b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड, इट डजंट मैटर। ओके, सो इसका एरिया ऐसा रहेगा। नाउ हियर्स द थिंग, एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो उस चीज के बारे में भी देख लेते हैं कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको वेक्टर लेने का एक रीजन है, क्योंकि व्हेन आई से कि 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 मीटर स्क्वायर एरिया, तो 2 मीटर स्क्वायर एरिया स्पेस में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। मतलब लेट्स से कि एरिया इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर, तो ये फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि वेयर इज दिस,
ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि वेयर इज दिस एरिया, व्हाट इज द ओरिएंटेशन, व्हाट इज द ओरिएंटेशन, ये सब क्वेश्चंस आ जाता है दिमाग में। तो उसके लिए इसका रीजन, इस चीज को समझने का कोशिश करो कि अगर ये ऐसा है, ये अपना तीनों एक्सिस है, एक्स वाई जेड, तो ये एरिया कहीं पे भी हो सकता है। ये जो एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, ये इधर भी हो सकता है एरिया, ये इधर भी हो सकता है एरिया, ये इधर भी हो सकता है, इट कुड बी समवेयर इन स्पेस, ऐसा भी रह सकता है ना, इस तरह से रह सकता है। तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि कौन सा एरिया लेना है करके, समझ गए ना। तो टू स्पेसिफाई एन एरिया इन स्पेस, तो यू नीड अ वेक्टर। तो वो वेक्टर के लिए क्या करते हैं कि एक अगर एरिया है लाइक दिस, लेट्स से दिस इज द एरिया, तो उसके परपेंडिकुलर, एरिया के परपेंडिकुलर हम लोग वेक्टर मान लेते हैं लाइक दिस, दिस इज द एरिया वेक्टर। इसका एरिया, इसका ये ए एरिया रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड वुड बी द एरिया एंड डायरेक्शन वुड बी परपेंडिकुलर टू द surface, it is perpendicular to the surface, okay। now in that case अपना अगर a क्रॉस b, अगर मैं बोलूं कि there is a parallelogram, तो पैरेललोग्राम का अगर वेक्टर, एरिया वेक्टर निकालना का है, ठीक है, तो इफ आई वांट टू फाइंड एरिया वेक्टर of a parallelogram would be equal to cross product of adjacent side vectors। इसका मतलब समझने का कोशिश करो कि अगर मैं ऐसा दिस पर्टिकुलर, इसी मान लो ये यही डायग्राम में देख लो, इन दिस डायग्राम इटसेल्फ इफ आई ट्राई टू से कि ये एक वेक्टर है, सॉरी, if I try to say that this is a vector, this is vector b, and this is vector a, तो a क्रॉस b देख रहे हो, इसको क्या नाम दे दूंगा मैं, I'll call this a vector and I'll call this b vector, ठीक है। तो a वेक्टर एंड b वेक्टर, तो उसके हिसाब से एक एरिया वेक्टर क्या रहेगा, एरिया वेक्टर a is going to be simply a क्रॉस b। एरिया वेक्टर इन दिस केस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इज गोइंग टू बी आउटवर्ड्स। ये सिंबल होता है आउटवर्ड्स का, दिस इज द सिंबल ऑफ आउटवर्ड। एक सेकंड, आई यूज अ डिफरेंट कलर। ये आउटवर्ड डायरेक्शन का किसी भी पेपर में, अभी तुम देखो तुम्हारे पेपर या फिर तुम स्क्रीन पे, स्क्रीन इज अ 2D सरफेस, तो 2D सरफेस में 3D चीज को इमेजिन करने के लिए वी यूज दिस कन्वेंशन। ध्यान से देखना, दिस इज द कन्वेंशन कि दिस इज आउट ऑफ द प्लेन, सॉरी, ये दो कन्वेंशंस बता रहा हूं, एक ये और एक क्रॉस। इसका मीनिंग क्या है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर या स्क्रीन जो भी है, एंड ये क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और स्क्रीन, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एरिया वेक्टर एंड फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ parallelogram using cross product, okay। Okay, so the next application is perpendicular component।
ऑफ ए वेक्टर. So let's say कि there are two vectors a and b. Let's say this is b vector, this is vector b, and this is vector a, and this angle is theta. तो इस a के दो कंपोनेंट्स बना सकता हूं मैं. वन कंपोनेंट would be parallel to b and the other would be perpendicular to b, है ना. तो if I drop a perpendicular like this, तो यहाँ पे मैं दो कंपोनेंट्स में बांट सकता हूं. फर्स्ट कंपोनेंट will be the component which is parallel to b, and the other component will be perpendicular to b. ठीक है, तो ये क्या हो गया, a पैरेलल, और ये क्या लिख सकता हूं, a परपेंडिकुलर. तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि a पैरेलल कैसे निकालते हैं, है ना. तो a पैरेलल कैसे निकालते थे, a पैरेलल was a cos theta, a cos theta था, एंड a पैरेलल का वैल्यू कितना रहेगा, cos, this can be written as a dot b by b. याद है ना, we have already done this. तो a पैरेलल, ये तो a पैरेलल का मैग्नीट्यूड हुआ. व्हाट अबाउट a पैरेलल वेक्टर, a पैरेलल वेक्टर, sorry, a parallel vector is going to be a dot b by b into डायरेक्शन. देखो इसका क्या है, इसका डायरेक्शन b कैप के अलॉन्ग है, इसका डायरेक्शन b कैप के अलॉन्ग है. देख सकते हो, दिस डायरेक्शन इज b कैप. समझ गए. एंड b कैप को क्या लिख सकते हैं, b वेक्टर बाय b लिख सकते हैं. तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज a पैरेलल कैन बी रिटन एज a dot b by b squared टाइम्स b वेक्टर. ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. a डॉट b एक नंबर होगा डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. सो दिस इज योर पैरेलल कंपोनेंट. ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट. नाउ अबाउट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट. परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या, कैसे निकालेंगे. परपेंडिकुलर कंपोनेंट a परपेंडिकुलर, इट इज a sin थीटा, इट इज a sin थीटा. तो a sin थीटा क्या होगा, हाउ कैन यू गेट a sin थीटा. यू नो दैट a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इट इज ab sin थीटा. So that implies you can say कि a perpendicular which is a sin theta is equal to क्या रहेगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, b. Okay, so that will be your a क्रॉस b परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने के लिए ये यूज कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट. एंड अगर मैग्नीट्यूड, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यू कैन राइट a क्रॉस a परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय b होल मल्टीप्लाइड बाय, ये एक डायरेक्शन दे दो. इस डायरेक्शन को तुमको, इट्स नॉट इजी टू राइट दिस, इस डायरेक्शन को सी कैप नाम दे दो. दिस इज अ होल न्यू डायरेक्शन, राइट. तो इसको सी कैप करके नाम दे सकते हैं. सो दैट इज योर डायरेक्शन. ओके, तो एक सेकेंड, इसको भी मैं मार्क कर देता हूं बिकॉज दैट इज द मैग्नीट्यूड. तो ये इसके दो एप्लीकेशंस हुए क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. फाइन, तो प्रॉब्लम करते हैं.
तो तुम्हें वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड सी वेक्टर दे रखा है आई माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप. ओके, तो ये तीन वेक्टर्स दे रखे हैं. तो ये सपोज टू फाइंड फर्स्ट वन a dot b, b dot c, c dot a, फोर्थ a क्रॉस b. सिर्फ हाथ घिसवा रहा हूं तुमसे. b क्रॉस c, c क्रॉस a. ओके, देन उसके बाद कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ, या फिर एक काम करते हैं, रुको दूसरा एक चीज कैलकुलेट कर रहा था. ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, एंड एट ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी. ये जस्ट एक प्रैक्टिस है. ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी. देन नाइन्थ वन ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर, ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी वेक्टर. नेक्स्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंगल बिटवीन सी एंड ए. ओके, देन component of A along B and component of C along A. चलो ये 15 चीज कैलकुलेट करना. आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. एंड हाँ, एक और चलेगा, बस इतना सब ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. तो आई वुड लाइक यू टू ट्राई दिस प्रॉब्लम. दिस इज योर homework. Okay, you're supposed to do this problem, and I would suggest you to start right now itself. Okay, this I'll give you one more question, that is component of B perpendicular to C वेक्टर. ठीक है, सिंपल. वो मतलब लास्ट वाला केस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ आई वांट टू टीच यू वन मोर थिंग, दैट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या रहता है? इट इज गिवन बाय ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी. अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है समझना. इधर एक मिनट, इसका वैल्यू कितना रहेगा? देखो कि ये दिस इज गोइंग टू बी स्केलर क्वांटिटी. दिस
थिंग इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि बी क्रॉस सी एक वेक्टर है और ए का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी करोगे, इसका जो वैल्यू आएगा इट इज गोइंग टू बी ए बी सी साइन थीटा cos phi. Now ये क्या क्या वैल्यू है वो समझाता हूं. थीटा इज द एंगल between b vector and c vector, and phi is the angle between a vector and b cross c vector. ओके, तो अभी इसका इसका इम्प्लीकेशन समझने का कोशिश करो. इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट. देखो ध्यान से, सब एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, ठीक है. तो लेट्स से दिस इज वन वेक्टर, दिस इज लेट्स से सी, ये अपना सी वेक्टर हुआ, दिस इज बी वेक्टर, and let's say this is a vector. This is our a vector. Okay. Now ये जो एंगल है बी और सी के बीच का एंगल कितना है? थीटा. ये जो एंगल है बी और सी के बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा. तो बी क्रॉस सी किधर होगा? देखो, बी क्रॉस सी विल बी अलोंग दिस लाइन, देख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू बोथ. एंड लेट्स से कि इधर मैं बना देता हूं उस वेक्टर को कि दिस वुड बी बी क्रॉस सी, दिस इज गोइंग टू बी बी क्रॉस सी. एंड ये जो एंगल दिख रहा है तुमको, दिस एंगल इज फाइव. ओके. ना इसका जो वैल्यू आएगा, दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ये जो a डॉट बी क्रॉस सी, इफ यू थिंक अबाउट दिस, देखो दो साइड्स को यूज करके क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है. दो वेक्टर्स यूज करके क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम. तीन वेक्टर्स को यूज करके एक 3D पैरेललोग्राम इमेजिन करो. Imagine a three-dimensional parallelogram. So how would that look like? It's a little difficult to draw, but I'll give it a shot. देखो, ये ऐसा रहेगा, इस तरह से. Just a moment. एक सेकंड प्लीज. इसी को थोड़ा और बड़ा कर देता हूं तो और क्लैरिटी आएगा. सॉरी इतना टाइम ले रहा है, बट जस्ट देखो ये क्या है चीज. एक थ्री डायमेंशनल फिगर है इस तरह से. लाइक दिस. देख सकते हैं ये जो भी चीज है, दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज कॉल्ड ए पैरेललोपिपेड. ये जो है ना, इसको कहते हैं पैरेललोपिपेड.
5 एंड जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रहेगा वॉल्यूम वी, सॉरी ए डॉट बी क्रॉस सी gives you the volume of parallelepiped. The best example would be to think of a cuboid. एक सिंपल सा क्यूबॉइड अगर इमेजिन करो तो क्यूबॉइड के लिए आई कैन राइट फॉर ए क्यूबॉइड थीटा कितना रहेगा 90 एंड फाई कितना रहेगा 0. देख सकते हैं ये चीज फॉर अ क्यूबॉइड. इस तरह से अगर मैं क्यूबॉइड बनाऊं जिसका साइड देखो ये हो गया, लेट्स से दिस इज ए, सॉरी दिस इज, इसको नाम दे देता हूं बी, या दिस इज सी, दिस इज बी एंड बी वेक्टर नाम दे देता इसको, एंड दिस इज ए वेक्टर. तो देख सकते हो कि इसका वॉल्यूम कितना रहेगा. वॉल्यूम इज गोइंग टू बी इक्वल टू, देखो बी क्रॉस सी, ये you can see that here theta is equal to 90 and b cross c would be like this na, b cross c is going to be parallel to a, तो phi क्या हो गया 0 हो गया. वॉल्यूम कितना हो गया a into b into c हो गया. ओके, so that is area volume of a parallelepiped. ठीक है, this is the application of cross product. एंड जस्ट फॉर ऐसा होमवर्क एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूं. फाइंड वॉल्यूम occupied by the following, by the combination of following. तो ए ये है आई प्लस जे प्लस के, 2i minus 3j एंड 5k. इनके बीच का जो वॉल्यूम रहेगा, दिस अगेन इज अ होमवर्क, यू नीड टू डू दिस. ओके, so that's our chapter vectors.